Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we will start from all the phylums. The first phylum in animal kingdom is phylum Porifera. Phylum Porifera. Porifera. Porifera means bearing pores. Porifera means bearing pores. हाँ जी. These animals are generally marine. These animals are generally marine, but few are freshwater organisms. Few are freshwater, and freshwater organism is Spongilla. Spongilla. This is the exception. Spongilla is freshwater. Second is level of organization. Level of organization is cellular. Means body is made up of cells only. Symmetry. Symmetry is asymmetrical. Symmetry is asymmetrical. If we cut the organism into various angles, no symmetry is formed. ठीक है जी. Next, the most important point in this, they have a water canal system. They have water canal system. What do you mean by water canal system? Water canal system is known as a transport system in which water enters through the minute pores. These minute pores are present all around the body in the sponges, and these minute pores are known as the ostia. These minute pores are known as the ostia, and through ostia the water reaches the central cavity. Through ostia water reaches the central cavity, and that cavity is known as spongocoel. That cavity is known as spongocoel. ठीक है जी. And spongocoels go out through large terminal opening. Spongocoel एक बड़े terminal opening में खुलती है, and that terminal or that opening is known as osculum. That opening is known as osculum. ठीक है जी. वाटर कैनल सिस्टम है जिसमें पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स हैं. These pores are called ostia. Ostia opens into spongocoel. Spongocoel is a body cavity, and spongocoel has a large terminal opening called the osculum. हाँ जी. नेक्स्ट, तो ये जो वाटर कैनल सिस्टम है इसका क्या फंक्शन है? दिस वाटर कैनल सिस्टम हेल्प्स इन फूड गैदरिंग. हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करने के लिए. फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट यानी एक्सक्रीशन. एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एक्सक्रीशन. इन सब में ये वाटर कैनल सिस्टम हेल्प करता है. नेक्स्ट, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय skeleton. Skeleton क्या है? Nothing. It is just made up of spicules, or we can say spongin fibers. Skeleton is made up of spicules or spongin fibers. Spongin fibers. हाँ जी. Next is digestion is intracellular. Digestion is intracellular. Intracellular means between the cells. Digestion is intracellular. Next, reproduction. Reproduction occurs asexually by the method of fragmentation as well as by the formation of gammules. Fragmentation you all know very well. When a large developed body break up into small fragments, and each fragment give rise to a new individual, and by the gammules. Gammules are reproductive units formed. And the next is the digestive system. Digestive system is complete, means anus and mouth is present. Next, about circulatory system. Students, circulatory system is open type. Circulatory system is open type. Now try to understand between the open and the closed type.
सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड होता है, एक ओपन होता है। क्लोज्ड क्या होता है, जिसमें जो ब्लड है वो वेसल्स में, क्लोज्ड वेसल्स में मूव करता है, जस्ट एक सर्किट की तरह। ठीक है जी। जो ओपन होता है, ओपन में क्या होता है, ओपन में लेकुनी और साइनसेस होते हैं। लेकुनी और साइनसेस, व्हाट आर लेकुनी एंड साइनसेस? स्टूडेंट्स, लेकुनी एंड साइनसेस मीन्स, जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ कि एक गड्ढा होता है ना, गड्ढा, छोटा छोटा गड्ढा, एक गड्ढे से वहां पे ब्लड कलेक्ट हो गया तो फिर वो हो गया लेकुनी। तो जब दूसरे गड्ढे में जाता है तो वो होती है, वो रास्ता होता है साइनसेस। तो गड्ढों की तरह जब ओपन होता है बिना किसी सर्कुलेटरी मतलब वेसल से ओपनली ही फ्लो करता है, तो हम उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड नहीं है, हीमोलिम्फ है। ठीक है जी। हीमोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है? हीमोसील में प्रेजेंट है। बॉडी फ्लूइड को हम हीमोलिम्फ बोलेंगे। बॉडी फ्लूइड कौन सा है यहाँ पे? हीमोलिम्फ। ठीक है जी। हीमोलिम्फ है बॉडी फ्लूइड हमारे पास यहाँ। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन। अब देखो सारे सिस्टम अब यहाँ पे स्टार्ट हो गए। इट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे हम ह्यूमन की तरफ जाएंगे, मैमेलिया की तरफ जाएंगे, सारे ऑर्गन्स ही बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी वेल डेवलप्ड स्टार्ट होगी। ठीक है जी। रेस्पिरेशन कहाँ है? रेस्पिरेशन इज बाय ट्रेकियल सिस्टम। अब ट्रेकियल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेकिया, तो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम ट्रेक्यूल्स बोलते हैं। वो ट्रेक्यूल्स आगे पाइप के रास्ते बॉडी में कनेक्ट होते हैं, वो होती हैं ट्रेकियास। ठीक है जी। ट्रेकियल रेस्पिरेशन सिस्टम है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम लास्ट में स्टार्ट हो गया था बनना, लास्ट वाली फाइलम हमारी एनिलिडा में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है तो वैसा ही है। नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, लेकिन यहाँ ब्रेन आ गया है। वो ब्रेन क्या है? ब्रेन इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ गैंग्लिया। इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ गैंग्लिया। तो ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन इज ए ग्रुप ऑफ गैंग्लिया, सेगमेंटल गैंग्लिया, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। डॉर्सल मीन्स बॉडी के ऊपरली साइड भी और नीचे वाली साइड भी, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। स्टूडेंट सेंस ऑर्गन, वन मोर थिंग हियर, सेंस ऑर्गन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। सेंस ऑर्गन किसकी फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ एंटीना। जो कॉकरोच के आगे या किसी मक्खी के आगे जो मूछें लगी होती हैं वो है उसके सेंस ऑर्गन्स। इट इज नोन एज एंटीना। ठीक है जी। नाउ आईज, सिंपल आईज भी हैं, कंपाउंड आईज भी हैं। ठीक है जी। सिंपल आई है जिसमें एक लेंस होता है, कंपाउंड आई है जिसमें मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। ठीक है जी। नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज बाय मालपीजियन टिब्यूल्स। अब एक्सक्रीशन के लिए भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स बन चुके हैं। एक्सक्रीशन अकर्स बाय मालपीजियन टिब्यूल्स। मालपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है जी। एक्सक्रीशन अकर्स बाय मालपीजियन टिब्यूल्स। नाउ लास्ट इज फर्टिलाइजेशन। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑब्वियसली सेक्सुअल है। ठीक है जी। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है जी। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल मीन्स इन द बॉडी ऑफ द organism. Now examples. Raji, examples of this phylum we can divide into 4 parts. First example is those insects that are economically useful to us. They are economically useful to us. तो economically useful क्या हो सकते हैं आपके? Bombyx. Bombyx means silkworm. ठीक है जी। Apis. Apis means शहद की मक्खी। ठीक है जी। हनी बी, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हनी। सेकेंड है जी वेक्टर्स दैट स्प्रेड डिजीज। वेक्टर्स दैट स्प्रेड डिजीज, तो इसमें क्या आएगा? एनोफ्लीज, मॉस्किटो। एनोफ्लीज क्यूलेक्स, इट इज ऑल्सो ए मॉस्किटो। एडीज, एडीज इज ऑल्सो ए मॉस्किटो। एडीज एजिप्टी दैट कॉजेज डेंगू। नेक्स्ट है जी ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस? ग्रीगेरियस वो होते हैं इंसेक्ट जो झुंड बनाकर रहते हैं। लोकस्ट, लोकस्टा, और यू कैन से लोकस्टा।
ठीक है जी, ये वो ग्रास हॉपर। नेक्स्ट है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल दैट इज, ये है हमारे पास लिविंग फॉसिल, ओनली वन ही मतलब बहुत कम इसकी हमारे पास है स्पीसीज, दैट इज लिमुलस। ठीक है जी। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम, फाइलम मोलस्का। इट इंक्लूड्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, बहुत ही सॉफ्ट होती है इनकी बॉडी। तो इनकी हैबिटेट क्या है? हैबिटेट है एक्वेटिक, मीन्स लिविंग इन वाटर। तो वाटर में मेरीन भी है, लिविंग इन सी और ओशियंस, और फ्रेश वाटर भी है, लिविंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, एंड सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं दैट आर फाउंड ऑन द लैंड। एंड वो जो है वो कहाँ पे है? टेरेस्ट्रियल में, मॉइस्ट प्लेसेस में, डोंट ऑन द ड्राई प्लेसेस, दे आर फाइंड ऑन द मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ऑर्गन है, वी आर मूविंग टुवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्रिकल। ठीक है जी, बाइलेटरल सिमिट्री। नेक्स्ट है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। बॉडी किस में डिवाइड है? यहाँ पे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन नहीं है। हियर इट इज हेड, विसरल मास, विसरल मास एंड ए मस्कुलर फुट, एंड ए मस्कुलर फुट। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स? एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, उसके बाद विसरल मास होता है। बॉडी का जो विसरा होता है ना, इंटरनल पार्ट जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी तरह ही एक बॉडी का विसरल मास होता है, एंड दैट इज अटैक्ड विद द फुट, मस्कुलर फुट। वो मस्कुलर फुट के साथ मूव करते हैं, दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट, एंड ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। इनके ऊपर बहुत ही पतली स्पॉन्जी स्किन होती है, दैट इज कॉल्ड द मेंटल। ठीक है जी, इसके ऊपर चढ़ी होती है मेनली, इट इज कॉल्ड द मेंटल। मेंटल इज द आउटर सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो तो एक्वाटिक है, दे आर डूइंग द रेस्पिरेशन विद गिल्स। तो गिल्स के साथ रेस्पायर कर रहे हैं वो। ठीक है जी। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन किसके साथ हो रही है यहाँ पे? एक्सक्रीशन अकर्स बाय टेनिडिया। टेनिडिया के स्पेलिंग सी से स्टार्ट होंगे, बट सी इज साइलेंट हेयर। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप एंड बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड हीमोसाइनिन। ठीक है जी, हीमोसाइनिन। नाउ माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। अब देखो रजे, माउथ है। ठीक है जी, माउथ में क्या है हमारे पास? एक रास्पिंग ऑर्गन, जस्ट लाइक टंग, रास्पिंग ऑर्गन, लेकिन यहाँ पे हम उसको रास्पिंग ऑर्गन बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडुला। माउथ कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन, हिलने वाला ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन, दैट इज नोन एज रेडुला। ठीक है जी। नाउ एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, नहीं फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही है, बट डेवलपमेंट इंक्लूड्स लार्वल स्टेज। ठीक है, इट मीन्स इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, fertilization is internal. Now what are the examples? Example is pila, sepia, octopus, lolico. These are the examples of these phylum mollusca. ठीक है जी, this is enough for today students, I think, because we have completed 3 phylums. Thank you and have a nice day.